Yes, so in last lecture we had discussed some application of Lagrange's theorem and counting formula, and then we had also collect some results or of existence of subgroup with respect to the divisibility of the order of the group. तो अब हम जानते हैं लाग्रांज थ्योरम जानते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके सम कॉरलरीज है वो जानते हैं, हमारे पास काउंटिंग फार्मूला है. सो नाउ लेट अस यूज ऑल दिस इंफॉर्मेशन वंस अगेन ऑन द साइक्लिक ग्रुप. हम साइक्लिक ग्रुप भी जानते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक ग्रुप? सो जस्ट लेट अस रिकॉल इट. सो इफ G is a group and if there exists A belongs to G such that G is this one, and we know what do you mean by this set. This set is what? A raised to m, where m belongs to Z. If G is generated by this element A, then we say that G is a cyclic group. And if you have H is any subgroup, H is a subgroup of G. Suppose H is a subgroup of G, and here I am not considering G is cyclic, but H is any subset of G, or sorry, subgroup of G. And if H is generated by some element, then we say that H is a subgroup of G, but it is a cyclic subgroup of G. So we know about the cyclic group, right? This, and we have also some more information about cyclic group with respect to the order of the elements in the cyclic group. कि मेरे पास कोई n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, तो उसके जनरेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, और उसमें कोई भी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, और वी नो सम प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप. बट वी हैव नॉट मच इंफॉर्मेशन अबाउट सपोज यू हैव वन साइक्लिक ग्रुप, देन व्हाट आर द सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप. उसके सब ग्रुप्स कैसे है वो एक पता है कि सब ग्रुप ऑफ एनी साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, दैट वी नो. लेकिन उसमें कितने सब ग्रुप मिलेंगे, और वो जो उसका ऑर्डर क्या होगा, और हर एक ऑर्डर के मिलेंगे कि नहीं. सो ऑल दिस थिंग अबाउट द सब ग्रुप ऑफ द साइक्लिक ग्रुप. सो लेट अस डिस्कस साइक्लिक ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सब ग्रुप्स, राइट. सो वी गिव द टाइटल ऑफ दिस टॉपिक इज रिविजिट ऑफ cyclic group. So first of all, let us recall what we know about the cyclic group. So first, some results and properties. That's already we know. जो हमने कुछ अगले लेक्चर में उसको प्रूव भी किया है, और we know. So first thing is what? If G is what? G is a cyclic group generated by A. If this is a cyclic group and order of A is equal to n, or it may be of infinite order, then order of G is also what? It is same as order of A is equal to n. And if order of A is infinite, then order of G is also infinite. So first thing is this one. Second one is what? If G is generated by A, then G is generated by A as well as its inverse also. That's also we know. Now third thing, if G is generated by A and order of G is equal to n, then G is generated by A raised to k if and only if GCD of n and k is equal to 1. तो ये दोनों रिजल्ट्स हमें क्या बता रहे हैं कि मतलब G is generated by A, then G is also generated by A inverse also. तो ये दो एक जनरेटर पता है तो दूसरा जनरेटर आपको पता चल जाता है उससे. और ये क्या दे रहा है, ये दिस गिव्स द फुल लिस्ट ऑफ द जनरेटर. मतलब जी ए से जनरेट हो रहा है,
Then you consider a to the power k, where k is what? K is co-prime to the order of G. So you consider a raised to k, then this element will also generate G. So we know this. Now fourth one, if G is a finite group, if G is a finite cyclic group of order n, then G has exactly phi n जनरेटर. तो उसके पास एग्जैक्टली कितने जनरेटर्स है? phi n जनरेटर्स. सपोज मेरे पास G is a cyclic group and order of G is 15 and G is cyclic. तो number of generators of G is equal to phi of 15. Phi of 15 is what? Phi of 3 into 5. Phi of 3 is 2 and phi of 5 is 4. So I have 8 generators. तो G के पास 8 generators हैं. Now fifth one, let G be a finite cyclic group of order n, then for every positive divisor d of n, there exist exactly phi d elements of order d, मतलब मेरे पास कोई n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, तो उसमें कौन से ऑर्डर के एलिमेंट्स रहेंगे? तो ये रिजल्ट बता रहा है कि फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर d ऑफ n, ये जो n है ग्रुप का ऑर्डर, उसका कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर ले लो, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पॉजिटिव डिवाइजर you have phi d elements of order d. Means suppose I have suppose order of G is, first of all, G is cyclic, and say order of G is 12, then divisors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. There are 6 divisors of 12, right? So these are the divisors of 12. So corresponding to 1, phi of 1. So you have phi of 1 element of order 1, and phi of 1 is what? 1. Corresponding to 2, you look at phi of 2. Phi of 2 is again 1. So you have 1 element of order 2. Corresponding to 3, you look at phi of 3. Phi of 3 is what? It is 2. So you have 2 elements of order 3. Corresponding to 4, you look at phi of 4. Then phi of 4 is again 2. So corresponding so there are 2 elements of order 4, and phi of 6, so phi of 6 is again 2, right? So there are 2 elements of order 6, and phi of 12, and phi of 12 will be what? It will be 4. Phi of 12, so see 12 is what? It is a 2 square into 3. So phi of 12 will be phi of 2 square into phi of 3. Phi of 2 square is what? It is 2. Phi of 4 is 2, and phi of 3 is also 2, so it is 4. So if you see, then this is what? Order wise distribution. This is number of elements of order d, and this is what d is what? Divisors of 12. So if you sum all this, then 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 4 is what? It is 12.
So you have 12 elements, and this is what distribution of all 12 elements order wise. So this is what property number 5. Okay. तो ये जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ये जो सब इंफॉर्मेशन है, दैट इज व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, एंड द बिहेवियर और बिहेवियर ऑफ ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट. एलिमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन कौन से जनरेटर है, कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स है. सो ऑल दैट इंफॉर्मेशन will be comes from this results, and we had discussed this. Okay, now let me consider the next one. Next information is what? Any infinite cyclic group has exactly 2 generators. कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास सिर्फ 2 ही जनरेटर्स हैं. 7th, सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक. साइक्लिक. 8th one, subgroup of any cyclic group is cyclic. So that is what that result is about subgroup. Any proper subgroup of any infinite cyclic group is always infinite. मतलब मेरे पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और उसका मैं प्रॉपर सब ग्रुप ले रहा हूँ. कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप मतलब आइडेंटिटी एंड द ग्रुप इटसेल्फ, इसके अलावा कोई मेरे पास सब ग्रुप है, देन इट मस्ट बी इनफाइनाइट. तो these 2 results are about सब ग्रुप्स. और जो साइक्लिक ग्रुप है तो उसके 2 ही जनरेटर है, ए एंड ए इनवर्स. ये इफ ए इज जनरेटर देन ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर. वी नो फ्रॉम हियर रिजल्ट नंबर 2, राइट. तो ये जो दोनों रिजल्ट्स है वो दैट इज अबाउट द सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप. सो नाउ वी वांट सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप. ओके, so let us see some so let me remove all this. Okay, so let us discuss one point about cyclic group. So let G be a cyclic group. Cyclic group of order से 12. मैंने एक साइक्लिक ग्रुप लिया 12 ऑर्डर का, तो क्या होगा? सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम ए इन जी सच दैट जी इज व्हाट जी विल बी जनरेटेड बाय ए. जी विल बी जनरेटेड बाय ए. सो जी कैसा दिखेगा? ऐसा ई ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेस टू 4 ए रेस टू 5 ए रेस टू 6 7 ए रेस टू 8 और लेट मी राइट क्यूब, जब जरूरत पड़ेगी तब लिख लेंगे, ए रेस टू 11. सो इट विल बी लुक लाइक दिस. ओके,
ओके, तो अब नाउ वी वांट टू फाइंड द सब ग्रुप्स ऑफ जी. अब लेट अस अप्लाई लाग्रांजिस थियरम ऑन दिस. तो लाग्रांजिस थियरम क्या कहता है कि सपोज H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, देन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, राइट. सो लेट H बी a subgroup of G. Then okay, second thing, G is what? G is cyclic, and every cyclic group is abelian. We know this, right? Or converse of Lagrange's theorem is true. Converse of Lagrange's theorem is true for finite cyclic group. ये हमें पता है. तो मतलब जो भी G का डिवाइजर है, ऑर्डर ऑफ G के डिवाइजर्स है, राइट, वो हर एक ऑर्डर का मुझे सब ग्रुप मिलेगा, राइट. लेकिन मैं यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ लाग्रांजिस थ्योरम इज ट्रू वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये यूज़ नहीं करना है. आई विल प्रोड्यूस अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ एवरी ऑर्डर, and that order is what? It is a divisor of order of G. So I will produce. So how can we produce it? So let us see. So let H be a subgroup of G, right? Okay. Why I consider H is a subgroup of G? Forget about H is a subgroup of G. Here order of G will be what? It will be order of G will be 12, and order of A will be also 12. So that is one observation, this thing. Okay. Now divisors of 12 are what? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. ये मेरे पास सब डिवाइजर्स है, राइट. ओके, so this is just for information. Now you consider any divisor. So let us first understand with one particular divisor, then we generalize it. For example, मुझे ये G का 6 ऑर्डर का सब ग्रुप चाहिए. I want a subgroup of G of order 6. ओके, इसके सिवा मुझे 5 ऑर्डर का तो सब ग्रुप नहीं मिलेगा, क्योंकि दैट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इज नॉट अलाउड बाय द लाग्रांजिस थ्योरम, बिकॉज 5 डज नॉट डिवाइड 12. तो 5 ऑर्डर का तो नहीं मिलेगा. यदि कोई सब ग्रुप मिलने वाले हैं देन इट मस्ट बी फ्रॉम दिस ऑर्डर ओनली, राइट. ओके, सो नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर 6. सो कैसे हम बना सकते हैं? सी लेट अस सी यू कंसीडर 6. So construction, let me write it. Construction of subgroup of order 6 of G. ये कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? So for that you consider 12 by 6. 12 is what? Order of G or order of A or order of generator. And this will be what? It will be 2. So from here you consider you take A square. तो ये जो A square है, ये A square will be in G definitely, because A belongs to G, so A square is also in G. You take A square. Now you consider H. H is what? H is a subgroup generated by, okay, before going that, let us find the order of A square. This, then what is order of A square? A square का order क्या रहेगा? So by that formula we have order of A divided by, order of A divided by GCD of order of A and 2. So here my order of A is what? It is 12. Order of A is 12 and this is 2. So GCD of 12 and 2 is what? It is 2 and 12. So it is what? 6. तो मुझे क्या मिला? Order of A square is 6.
एस स्क्वायर का ऑर्डर मुझे मिला 6. सो व्हाट आई विल डू, यू कंसीडर एच इज सब ग्रुप जनरेटेड बाय एस स्क्वायर. तो ये एस स्क्वायर से क्या होगा, एस स्क्वायर विल जनरेट 6 एलिमेंट्स. एस स्क्वायर कैन जनरेट 6 एलिमेंट. तो ये कौन कौन से रहेंगे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंसिडर एच इज इक्वल टू दिस, देन इट विल बी द सब ग्रुप ऑफ जी, राइट? इट विल बी द सब ग्रुप ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ एच इज सेम एज ऑर्डर ऑफ एस स्क्वायर एंड ऑर्डर ऑफ एस स्क्वायर इज 6. तो क्या हुआ, मेरे पास एच एक मुझे जी का सब ग्रुप मिला और जिसका ऑर्डर मेरे पास क्या है 6. तो ये 6 इज अ डिवाइजर ऑफ 12. तो मैं एक डिवाइजर उठाया तो वो ऑर्डर का मैंने सब ग्रुप जनरेट कर दिया, राइट, जी का. एंड दिस H इज अ सब ग्रुप ऑफ G. G इज साइक्लिक, सो डेफिनेटली H विल बी ऑल्सो साइक्लिक. ओके, तो अल्टीमेटली ये मुझे H क्या मिला है, 6 इज व्हाट, 6 इज अ डिवाइजर ऑफ 12. 6 डिवाइड्स 12. तो मुझे 6 ऑर्डर का सब ग्रुप चाहिए था, तो क्या किया मैंने, सो दिस H इज व्हाट, इट इज जनरेटेड बाय A स्क्वायर, बट ये दैट स्क्वायर इज व्हाट, इट इज अ 12/2. तो यहाँ पर सॉरी 12/6. तो यहाँ पे देखिए 6 डिवाइड्स 12 था, तो उसको मैंने उल्टा कर दिया 12/6. This is not mathematics, but it is just to remember 6/12, then you consider 12/6. So whatever, 12/6 is 2. Ultimately it is 2. But how this 2 comes? So like this, right? So here order of H will be what? Order of H will be what? It will be, order of H will be so order of H will be 6. ये मुझे 6 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल गया. सो लेट अस प्रूव इन जनरल. तो इन जनरल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा हमें, सो लेट D बी एनी डिवाइजर ऑफ n, राइट, D बी एनी डिवाइजर ऑफ n. सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल frame the result. So let G is what, G is a subgroup, G is a group generated by A and order of G is what, n. Then it is what, order of A, and you take, let D be any divisor. D is what, D is any divisor of n. D be any positive divisor, any positive डिवाइजर ऑफ n. n का कोई भी डिवाइजर ले लो, राइट? तो क्या होगा, ओके, नाउ यू टेक, लेट k इज इक्वल टू n/d. सो डेफिनेटली k विल बी इंटीजर बिकॉज d इज अ डिवाइजर ऑफ n. सो यू कंसिडर k इज इक्वल टू n/d. ओके, सो नाउ यू कंसिडर, नाउ यू टेक, नाउ यू कंसिडर सम एलिमेंट a टू द पावर. तो हमने यहाँ पर क्या किया था, 12 बाई डिवाइजर इज 6. सो यू कंसिडर a टू द पावर n/d और a टू द पावर k. यू कंसिडर a टू द पावर k. सो कंसिडर a टू द पावर k बिलोंग्स टू g. ये g में ही होगा. सो नाउ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k? So order of a to the power k will be what? It is order of a divided by GCD of order of a and k. But order of a is what? It is n. And order of a is n and k. GCD of n and k. But from here you can see n is what? Kd. N is what? Kd. So k is a divisor of n. So if k is a divisor of n, then greatest common divisor of n and k will be what? K itself. So here I can say it is what? N by k, because k divides n. यहाँ से बोल सकते k divides n. But n by k. So here what I have? K is equal to n by d. So d is equal to n by k. So n by k is what? D. तो ultimately क्या प्रूव हुआ? Order of a raised to k is d.
that is, you can say order of a to the power k is what? n by d is d. तो अब हम क्या करेंगे? You take h is what? H is a subgroup generated by a to the power n by d. So it will be what? It will be a subgroup of G, and order of H will be what? It is order of a to the power n by d, and order of a raised to n by d is what? It is d. तो क्या हुआ कि suppose G is a cyclic group of order n. Now you consider any d positive divisor of n, then I have a subgroup H of G whose order is also d. तो मतलब कि मेरे पास यहाँ पे क्या था? G का ऑर्डर 12 था, तो 12 के डिवाइजर्स कितने हैं? 1 2 3 4 6 12, ये सब 12 के डिवाइजर है। तो मुझे 1 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, 2 ऑर्डर का, 3 4 6 12, ये सब ऑर्डर के मुझे सब ग्रुप्स मिल जाएंगे। सो बाय दिस रिजल्ट, राइट। तो ये जो रिजल्ट है उसको हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं? सो दिस इज व्हाट result we have let G be a cyclic group of order n, then for every positive divisor d of n, there is a subgroup of G of order d. So corresponding to every divisor of d there is a subgroup of order d. तो मतलब हमने क्या प्रूव किया? अल्टीमेटली कन्वर्स ऑफ Lagrange's theorem is true for finite cyclic group. So in fact it is true for any finite abelian group also, but if you do not use that thing, so independently हमने ये प्रूव कर दिया कि मेरे पास कोई n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, राइट, देन corresponding to every positive divisor of order of group I have वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि चलो यहाँ पे मुझे हमने यहाँ देखा कि मेरे पास यहाँ पर क्या था? जी का ऑर्डर 12 था एंड जी इज जनरेटेड बाय ए, साइक्लिक ग्रुप था। तो मुझे 6 ऑर्डर का एक सब ग्रुप तो मिल गया, कंस्ट्रक्ट किया, राइट। लेकिन क्या मुझे 6 ऑर्डर का दूसरा सब ग्रुप मिलेगा? ऐसे ही हमें 4 ऑर्डर के सब ग्रुप मिल जाएगा, 4 ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिल जाएगा, तो क्या मुझे दूसरा 4 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा? So that is the next question, right? Okay, so first of all let us try to write down subgroups. मतलब ये 12 के केस में it will be a good exercise. ये आगे जाके बहुत काम आएगी हमें। देखो ये मेरे पास क्या है? ये G is generated by A, order of G is equal to 12 एंड तो ए का ऑर्डर भी हो गया 12। तो ये मेरे पास ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। नाउ डिवाइजर्स ऑफ 12, तो 12 के डिवाइजर्स कौन कौन से? 1 2 3 4 6 एंड 12। डिवाइजर्स ऑफ 12 उसको मैं बोल देता हूँ डी। सो ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर डी, डी ऑर्डर का सब ग्रुप्स कौन कौन से होंगे? तो ये जो मुझे सब, उसको हम बोल देते से H1। H1 मीन्स 1 ऑर्डर का सब ग्रुप, 1 इज अ डिवाइजर ऑफ 12, राइट। तो H1 कौन सा रहेगा? तो हमारे पास टेक्निक है, क्या है? 1 डिवाइड्स 12, 1 डिवाइड्स 12, सो यू कंसिडर 12 by 1। सो
a टू द पावर 12 बाई 1. तो a टू द पावर 12, a to the power 12 is what? It is identity. A to the power 12 is what? It is identity. So then you consider a subgroup generated by identity, then it will be of order 1. Now for 2, so let me say it is H2. So H2 you consider subgroup generated by a raised to, here 2 divides 12, so you consider 12 by 2. 12 by 2, then it will be what? A raised to 6. तो जो a raised to 6 से जो जनरेट होगा, और ये g हमारा क्या है? See here, g is what? It is generated by a, so it will be a square a cube 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ये हमारा g है. तो अब a रेस टू 6, ये जो एलिमेंट है उससे जो जनरेट होगा वो जो g का सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर रहेगा 2. नाउ यू कंसिडर H3. सो H3 इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3. Here 3 divides 12, so you look at 12 by 3, so a raised to 12 by 3, so it will be a raised to 4. For H4 it will be a raised to 12 by 4, so it will be a cube. H5 it will H6, so H6 will be 12 by 6, so it will be a to the power 2. And H12, that is a to the power 12 by 12, and that is what? 1. So a. तो ये मुझे I got these 6 subgroups of order 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Okay, so this will be what? This will be this 3 is a divisor of 12 and H3 is a subgroup of G of order 3. तो ये let us say H3 कैसा दिखता है? So H3 will be what? It is a subgroup generated by a raised to 4. So it will be what? Identity, then a raised to 4, then a raised to 4 square, then this will be what? A raised to 4, ये जो a raised to 4 का ऑर्डर क्या रहेगा? जो H3 का ऑर्डर है, और H3 का ऑर्डर क्या है? 3, राइट? तो मतलब a raised to 4 square, it is a raised to 8. But if you consider a raised to 4 cube, then it will be a raised to 12, and a raised to 12 is identity. So it contains only these 3 elements, right? Okay. So for a moment, you say this is E, this is your B, and this is your B square, where B is what? A raised to 4. Then B square will be this one, right? Okay. तो ये जो B, ये मुझे 3 ऑर्डर का सब ग्रुप मिला. तो ये जो 3 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप, दिस इज व्हाट? दिस इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3. कोई भी ले लो आप, कोई भी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इन जनरल. सो लेट अस कंसीडर साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3. तो कैसा रहेगा? एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक ये 3 एलिमेंट का 3 ऑर्डर का एलिमेंट है क्योंकि उसको जनरेट करने के लिए चाहिए. तो ये जो दूसरा एलिमेंट है, सो ये ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर क्या रहेगा? So here order of B is same as order of a raised to 4, and it is 3. So order of B square will be what? It will be order of B, that is 3, divided by GCD of 3 and 2, that is 3 by 1, that is also 3. तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 3 और इसका ऑर्डर भी 3. तो मुझे कोई भी साइक्लिक ग्रुप चाहिए 3 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का. देन हाउ इट कंस्ट्रक्ट? एक आइडेंटिटी एलिमेंट and you consider 2 elements of order 3. तो एक एलिमेंट ले लो, तो उसका स्क्वायर करो, then it will be what? B square. तो उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा? 3 रहेगा. So ultimately
what I need, one identity and two elements of order 3, right? Okay. तो सपोज मुझे आई वॉन्ट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, तो वो कैसा रहेगा? सो लेट अस सी. Suppose let us say G is what? G is cyclic group of order 6. तो G कैसा देखेगा? G is what? It is generated by B. Order of G is same as order of B is equal to 6. और G कैसा दिखेगा? कैसा? It will be like E, B, B square, B cube, B raised to 4, B raised to 5 ऐसा दिखेगा. तो इसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, B का ऑर्डर 6 रहेगा क्योंकि इट इज़ जनरेटर. नाउ इनवर्स ऑफ B इज व्हाट? इट इज B raised to 5 बिकॉज B into B raised to 5 is B raised to 6. B raised to 6 इज आइडेंटिटी. सो दिस इज व्हाट? इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा? 6. नाउ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ B स्क्वायर? सो ऑर्डर ऑफ B स्क्वायर विल बी व्हाट? ऑर्डर ऑफ B दैट इज 6 डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ B and 2, GCD of 6 and 2. So that will be what? 6 by 2 and that is 3. So B square का ऑर्डर क्या रहेगा? Order of B square will be 3. Order of B square will be 3. So B square and B raised to 4 are inverse of each other because B square into B raised to 4 is B raised to 6 and B raised to 6 is identity. So product of these two is identity. So these two are inverse of each other. तो इसका ऑर्डर 3 है तो इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा? 3. and otherwise you can go this way also. Order of B raised to 4 is what? GCD of 6 4 and here 6. So GCD of 6 4 is again 2. So it is also 3. And order of B cube will be what? It will be order of B cube. So here I have 3 and so this is what? 3 and this is 2. तो ये मेरे पास क्या है? 2 ऑर्डर का एलिमेंट. तो ये जो 6 ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है तो ये उसका स्ट्रक्चर है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6, 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 and 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, राइट? 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2. ओके. तो देखिए ये तो कंप्लीट हो गया कि मेरे पास 12 ऑर्डर का कोई ग्रुप था तो ये उसके सब डिवाइजर्स थे और हर एक डिवाइजर्स के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक सब ग्रुप मिल रहा है. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट कि ये 1 ऑर्डर का एक सब ग्रुप है, 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप है ये वाला, 3 ऑर्डर का एक सब ग्रुप ये, 4 ऑर्डर का ये, 6 ऑर्डर का ये और 12 ऑर्डर का ये. तो माय क्वेश्चन इज दैट 4 ऑर्डर का ये एक सब ग्रुप है तो कोई दूसरा सब ग्रुप मिलेगा इसके सिवा जिसका ऑर्डर 4 हो? सो दैट इज माई आई एम ट्राइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि दूसरा कोई मिलेगा. तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए कि लेट अस सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप, 12 ऑर्डर के ग्रुप में. तो ये क्या हो गया मेरा? एक तो मुझे मिल ही रहा है तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ. कौन सा मिल रहा है वो भी हमें पता है. ओके. सो नाउ लेट मी कंसीडर हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी. डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? ओके. अगेन बाय लाग्रांजिस थ्योरम ये जो साइक्लिक ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को तो डिवाइड करेगा ही, उसके सिवा कोई ऑर्डर का एलिमेंट नहीं हो सकता. ये 12 ऑर्डर के ग्रुप में 5 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं रहेगा बिकॉज 5 डज नॉट डिवाइड 12. तो यही डिवाइज़र है और वो हम जानते हैं कि ये जो डिवाइज़र है तो 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं मेरे पास? 5 of 1 and that is what 1. 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं? 5 of 2 that is 1. 3 ऑर्डर के 5 of 3 that is 2. 4 ऑर्डर के 5 of 4 that is also 2. 6 ऑर्डर के 5 of 6 that is also 2 and 5 of 12 and that is what 4. 4 एलिमेंट है. So 4 plus 4 8, 8 plus 4 12. तो ये टोटल हो गए 12. तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है एलिमेंट वाइज.
ओके, अब मुझे 6 ऑर्डर का सब ग्रुप बनाना है, राइट। 6 ऑर्डर का सब ग्रुप बनाना है, तो जी मेरा साइक्लिक है, तो उसका जो 6 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा कौन सा होगा, तो वो हमें पता है कि दैट H6 हमने जो अभी नाम दिया था, सो दैट विल बी व्हाट, इट इज जनरेटेड बाय a टू द पावर 12/6 एंड दैट इज व्हाट, इट इज a टू द पावर 2। इससे जो जनरेट होगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 6। ओके, अब कोई भी आप सब ग्रुप ले लो, साइक्लिक ग्रुप 6 ऑर्डर का, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। 6 ऑर्डर का मुझे साइक्लिक ग्रुप चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, राइट। एक आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, तो एक मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, यस आई हैव वन आइडेंटिटी एलिमेंट हियर, राइट, 1 ऑर्डर का। फिर मुझे 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए। 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट चाहिए, तो ये जो H6 है, H6 में एक आइडेंटिटी रहेगा, 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6, फिर क्या होगा, 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये H6 जो भी ये बनेगा वो लिख सकते हैं, लेकिन हमें वो लिखना नहीं है, लेकिन इसका ऑर्डर 6 है और ये साइक्लिक है, तो ये जो साइक्लिक ग्रुप है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होगा। तो मुझे एक आइडेंटिटी चाहिए, मेरे पास एक आइडेंटिटी है, 1 ऑर्डर का एलिमेंट है, वो ले लिया। नाउ आई वांट 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट है, तो एक आइडेंटिटी खर्च हो गई, एक 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट खर्च हो गए, तो अब मेरे पास 6 ऑर्डर के कोई एलिमेंट नहीं है। देन आई नीड 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, तो 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट है, तो ये भी ले लो। फिर आई वांट 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट है, तो ये ले लो, राइट। तो मेरे पास जो एलिमेंट्स है 12 एलिमेंट्स थे, 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट, 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट, 3 ऑर्डर का 2 एलिमेंट, 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट, 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट और 12 ऑर्डर्स के 4 एलिमेंट्स। तो ये जो 12 एलिमेंट्स थे उसमें से मैंने इतने एलिमेंट ले लिए, तो ये एक मुझे सब ग्रुप मिल गया। दिस इज माई फर्स्ट सब ग्रुप of order 6. Now I want a second subgroup, next इनसे डिफरेंट, इसके जो एलिमेंट्स है वो उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी तो कोई भी सब ग्रुप में रहती है। तो मुझे दूसरा सब ग्रुप बनाना है, से के मुझे बनाना है सब ग्रुप ऑफ दिस G and order of K is what, it is 6, तो definitely it will be cyclic। तो साइक्लिक ग्रुप 6 ऑर्डर का चाहिए, तो उसका स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होगा। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक आइडेंटिटी ले सकते हैं, फिर मुझे चाहिए 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6। तो ये जो 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट है वो तो मैंने यहाँ पर रख दिए थे। नाउ आई कांट यूज दिस 2 एलिमेंट हियर, तो इसके सिवा कोई दूसरे एलिमेंट भी नहीं है जिसका ऑर्डर 6 हो, क्योंकि 6 ऑर्डर के तो मेरे पास 2 ही एलिमेंट है। सिमिलरली आई हैव ओनली आई नीड 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, और वो तो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, तो यहाँ पे मुझे 3 ऑर्डर के 2 और एलिमेंट चाहिए इसके सिवा, तो और तो कोई है नहीं। सिमिलरली आई हैव ओनली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड इट इज़ यूज्ड हियर एंड आई नीड हियर ऑल्सो, सो आई डू नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 एक्सेप्ट दिस वन। So I can't have the distinct subgroup or another subgroup of order 6 other than this H6, right? तो इससे हमें क्या मिला कि मेरे पास 12 ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है, तो उसका कोई भी डिवाइजर लिया, हमने लिया फॉर एग्जांपल 6, तो मुझे 6 ऑर्डर का उसका एक सब ग्रुप मिल रहा है। तो 6 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल रहा है, द एग्जिस्टेंस इज क्लियर। Now our next question is
whether we get the another subgroup of order 6, then answer is no by this argument, right? तो हमें क्या मिला कि for every divisor of 12 we have a subgroup of that subgroup of order of every divisor, and it will be exactly 1. So we have this statement C. So I will modify this statement. Let G be a cyclic group of order n. Then for every positive divisor D of n, there is a subgroup of G of order D. That is fine. But now we know something more, and it will be exactly 1, right? So there is exactly one subgroup of order D. So that is important. One subgroup of order D. तो देखो यहाँ से एक दूसरी चीज़ भी निकल के आती है कि मेरे पास कोई भी साइक्लिक ग्रुप कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट किया, ये 6 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बनाना है, तो क्या चाहिए, इसकी रेसिपी क्या है, एक आइडेंटिटी ले लो, 2 6 ऑर्डर के एलिमेंट, 2 3 ऑर्डर के एलिमेंट और एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट ले लो और उसको रख दो, देन यू विल गेट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। अब दूसरा साइक्लिक ग्रुप बनाना है तो फिर एक आइडेंटिटी ले लो, फिर 2 6 ऑर्डर के एलिमेंट ले लो। ओके, आई वांट डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, तो और दूसरे 6 ऑर्डर के एलिमेंट है तो उसको ले लो, फिर 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट ले लो और एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट ले लो, देन 1 साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज रेडी, राइट। तो इस तरह से हर एक साइक्लिक ग्रुप, तो हमें पता है कि एक मेरा कोई साइक्लिक ग्रुप है n ऑर्डर का, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक आइडेंटिटी है और फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ d ऑफ n देयर आर एग्जैक्टली 5d एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d। तो उस हिसाब से आप एलिमेंट्स को कलेक्ट करते जाओ तो आपको नया नया साइक्लिक ग्रुप्स बनते जाएंगे, राइट। सो ये एक टेक्निक है साइक्लिक ग्रुप कंस्ट्रक्ट करने की, राइट। तो सो लेट अस डिस्कस दिस टेक्निक हियर एंड व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट टेक्निक। सपोज मेरे पास आई हैव अ, लेट G बी अ ग्रुप, let G is a group generated by A and order of G is equal to 20. So order of A will be also 20. So now you forget about this group of order 12. Let me concentrate on this one. Why I consider this group G? Forget about this. Let G be a group. I don't know. Let G be a group. It may be finite, infinite, abelian, non-abelian, I don't know. Let G be a group, right? Okay. Now what I do, let A belongs to G. मैंने एक एलिमेंट लिया G में से, okay? Let A belongs to G such that order of A is 4. A का ऑर्डर क्या है, 4 है, ऑर्डर ऑफ A इज 4। देखिए यहाँ से मैं एक नया डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट, दिस इज अ न्यू डिस्कशन, देन आई विल अटैच दिस डिस्कशन विद दिस रिजल्ट एंड रिलेटेड टू साइक्लिक ग्रुप, बट राइट नाउ आई हैव स्टार्टेड विथ वन ग्रुप, इट मे बी फाइनाइट, इनफाइनाइट, अबेलियन, नॉन अबेलियन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, आई डोंट नो, इट इज जस्ट अ ग्रुप एंड यू सपोज A बिलोंग्स टू G। मैं लेट नहीं कर सकता क्योंकि G में सपोज ऐसा भी हो सकता है कि 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही ना हो, फॉर एग्जांपल माय ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर 35, देन हाउ कैन आई हैव एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4? सो सपोज, लेट मी कंसिडर सपोज A belongs to G such that its order is 4. So now what I will do, you consider H1 is what? It is a subgroup generated by A, so it will be what? E, A, S square and A cube, right, because A raised to 4 will be identity. Okay, तो मुझे ये क्या हुआ, it will be the subgroup of G, cyclic subgroup of G of order 4,
Okay, now suppose B belongs to G such that order of B is also 4. B का order भी 4 है, right? And I assume that order of B is 4 and this is one extra condition. This B is not equal to A. B is not equal to A. ये जो मेरा B है ना वो A नहीं है, right? And B is also not equal to A cube. क्योंकि देखिए यहाँ H1 है वो मेरा A से जनरेट होता है, तो डेफिनेटली A का ऑर्डर तो 4 है, तो A क्यूब का ऑर्डर भी 4 रहेगा ना. A का ऑर्डर 4 है, A क्यूब का ऑर्डर भी 4 रहेगा. यू कैन फाइंड ऑर्डर ऑफ A क्यूब विल बी व्हाट 4 अपॉन GCD ऑफ 4 and 3. 4 and 3 GCD is 1, so 4 by 1, so it is, so my B is also not A cube. मतलब see what I am doing, this is my G, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें से मैंने एक आइडेंटिटी तो है ही, फिर एक मैंने A ले लिया, तो A से मुझे A स्क्वायर और A क्यूब ये 3 एलिमेंट मिल गए. A है, A स्क्वायर है और A क्यूब है. अब मैं कोई एक दूसरा एलिमेंट ले रहा हूँ B, तो वो A भी नहीं है और वो B है वो A क्यूब भी नहीं है और उसका ऑर्डर 4 है, तो डेफिनेटली B एंड A स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल, राइट? वाई? बिकॉज A स्क्वायर का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ A स्क्वायर विल बी व्हाट? इट इज ऑर्डर ऑफ A अपॉन GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ A एंड 2. सो ऑर्डर ऑफ A इज 4, 4 2, सो 4 by 2 दैट इज 2, तो इसका ऑर्डर 2 है और B का ऑर्डर 4 है, तो मतलब ये B तो मेरा A स्क्वायर तो डेफिनेटली नहीं है, तो B A भी नहीं है, A क्यूब भी नहीं, मतलब मैंने कोई अलग एलिमेंट ले लिया. तो ये जो मैं H2 बना रहा हूँ दैट इज व्हाट जनरेटेड बाय B, सो इट विल बी व्हाट. अब मेरा B G में है तो B स्क्वायर भी G में रहेगा और ये B क्यूब भी G में ही रहेगा, तो आई विल कंसिडर B स्क्वायर एंड B क्यूब, सो इट विल बी सब ग्रुप ऑफ G एंड आई क्लेम दैट ये जो A मेरा B से इक्वल नहीं है और जो A है सॉरी B इज़ नॉट इक्वल टू A, B मेरा A नहीं है और B मेरा A क्यूब नहीं है, देन आई क्लेम दैट ये आइडेंटिटी इक्वल है, लेकिन ये तीनों में से कोई भी एलिमेंट इससे इक्वल नहीं होगा. दे विल नॉट बी इक्वल. A स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू A स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू B स्क्वायर and A square will not be is equal to B cube also. So let us just discuss it. See what I have, A is not equal to B and A is not equal to B cube, right? तो A मेरा B नहीं है, A मेरा B क्यूब नहीं है, तो A मेरा B स्क्वायर भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि A का ऑर्डर 4 है और यहाँ पर B स्क्वायर का ऑर्डर क्या रहेगा 2, इसका ऑर्डर है 4, इसका ऑर्डर है 4, इसका ऑर्डर है 1. ये तो आइडेंटिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो A विल नॉट बी इज इक्वल टू B स्क्वायर, मतलब A इन तीनों में से इक्वल नहीं है. नाउ A स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू B बिकॉज इसका A स्क्वायर का ऑर्डर 2 है और B का ऑर्डर 4 है. A स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू B क्यूब. वाई? बिकॉज A स्क्वायर ऑर्डर इज 2 एंड B क्यूब ऑर्डर इज 4. नाउ A स्क्वायर विल नॉट बी इज इक्वल टू B स्क्वायर. A स्क्वायर विल नॉट बी इज इक्वल टू B स्क्वायर. मान लो कि A स्क्वायर और B स्क्वायर सेम हो गए तो क्या होता है? सपोज A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, सो इट गिव्स मी व्हाट A स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 ऑर्डर का है ना, दिस आर व्हाट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2. सो what we can do here, A square is equal to yes, so A square is equal to B square. Okay, then there is no issue, it may be equal, A square and B square may be equal, but here B is not equal, B is not equal to A and B is not equal to A cube, so these two elements are not equal, right? So A square का और B square का order 2 है, so that may be equal, but we are not interested in that, forget about it.
तो वो दोनों हो सकते हैं। तो मुझे ये क्या मिला कि ये जो है दैट इज अ डिफरेंट सब ग्रुप ऑफ G and of order 4 and it is generated by B, so it is cyclic। तो अब मैं कोई तीसरा एलिमेंट उठा रहा हूं, सपोज C belongs to G such that, let me write here, अब मुझे कोई तीसरा एलिमेंट मिल रहा है, सपोज C belongs to G such that ऑर्डर ऑफ C क्या है, 4, वो भी 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, एंड दिस C इज नॉट इक्वल टू A। यहाँ पर मेरे पास A 4 ऑर्डर का ऑलरेडी एलिमेंट है और A क्यूब भी है, तो C इज नॉट इक्वल टू A, C इज नॉट इक्वल टू A क्यूब। और दूसरा एलिमेंट था हमारे पास 4 ऑर्डर का B, सो सपोज C इज नॉट इक्वल टू B and C is not equal to B cube also because B cube order of B cube is also 4। तो मैंने कोई एक C एलिमेंट ले लिया जिसका ऑर्डर 4 है और वो A क्यूब B एंड B क्यूब से डिफरेंट है। मतलब ऑलरेडी आए 1 2 3 4 4 एलिमेंट तो थे 4 ऑर्डर के, तो मैंने 5वां एलिमेंट लिया। Then I will consider H3 is equal to subgroup generated by C. It will be E, C, C square and C cube. So order of C will be 4. So C cube order is also 4. C square order is 2 and identities order is 1. तो ये मुझे क्या मिल रहा है? It is a subgroup of G. And it is what? Cyclic group of order 4. तो अब मुझे कोई D मिल रहा है जिसका ऑर्डर 4 है एंड द D इज नॉट इक्वल टू A क्यूब, B क्यूब एंड C क्यूब, देन आई कैन कंस्ट्रक्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 ऑफ G एंड विच इज साइक्लिक एंड ऑफ ऑर्डर 4। तो से देखिए ये जो हम डिस्कस किया हमने, इसमें क्या हुआ कि मुझे ये 4 ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप चाहिए, साइक्लिक सब ग्रुप चाहिए। तो क्या करना पड़ता है मुझे, वो साइक्लिक 4 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बनाने के लिए मुझे 2 4 ऑर्डर के एलिमेंट चाहिए, और ये जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो अपने आप आएंगे। आइडेंटिटी तो ले ही लेंगे हम, फिर बाकी A लिया तो A के साथ A स्क्वायर आएगा और A के साथ A क्यूब भी आएगा। मतलब मेरे ग्रुप में जितने 4 ऑर्डर के एलिमेंट हैं ना, उसमें से 2 एलिमेंट यहाँ पे खर्च हो गए। अब मुझे दूसरा 4 ऑर्डर का बनाना है इसके अलावा, तो जितने भी 4 ऑर्डर के बाकी एलिमेंट्स बचे हैं A क्यूब के सिवा, उसमें से और 2 यहाँ खर्च हो जाएंगे। अब इसके ये दोनों के सिवा तीसरा 4 ऑर्डर का बनाना है, तो बाकी जितने 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं उसमें से और 2 यहाँ खर्च हो जाएंगे। अब चौथा चाहिए तो मुझे और 2 4 ऑर्डर के एलिमेंट चाहिए। तो सपोज मेरे पास अब 4 ऑर्डर के एलिमेंट बचे ही नहीं है ग्रुप में, तो मुझे सिर्फ ये 3 ही मिल रहे हैं। तो मतलब नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन G कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन G, ग्रुप में 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, तो जितने भी 4 ऑर्डर के एलिमेंट है उसमें से 2 एलिमेंट एक ग्रुप बनाने के लिए मुझे चाहिए। तो ये 2 क्या है, सो दैट 2 इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, राइट। तो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 में 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, देन वी नो द रिजल्ट, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इज 5d, राइट। तो यहाँ पे कितने हुए, ये 4, ये 4 इज व्हाट, सॉरी 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट है, तो दैट 2 इज व्हाट, इट इज 5 ऑफ 4। तो एक सब ग्रुप बनाने के लिए मुझे 5 ऑफ 4 दैट इज 2 एलिमेंट चाहिए, तो दूसरे के लिए और 5 ऑफ 2 और 5 ऑफ 2, तो मतलब जितने 4 ऑर्डर के एलिमेंट हैं उसको आप 5 ऑफ 4 से डिवाइड कर दो, तो इतने मेरे सब ग्रुप बन जाएंगे, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन एनी ग्रुप G। सो इन जनरल यहाँ पे मैंने 4 के लिए किया, तो इन जनरल सपोज लेट मी राइट दिस रिजल्ट, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n in G,
नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इन G, एनी ग्रुप G। तो क्या करेंगे हम, मुझे n ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप कितने मिल रहे हैं वो चाहिए। तो पहले आप क्या करो, ये जो ग्रुप है उसमें n ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन G। अब एक साइक्लिक ग्रुप बनाना है मुझे n ऑर्डर का, तो उसमें मुझे n ऑर्डर के कितने एलिमेंट होने चाहिए, 5 ऑफ n, दूसरे में अगेन 5 ऑफ n, तीसरे में अगेन 5 ऑफ n। तो जितने n ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं उसमें से 5 ऑफ n का एक बंच बना के एक सब ग्रुप बनेगा, दूसरे 5 ऑफ n का दूसरा, तीसरे 5 ऑफ n का तीसरा, तो डिवाइड बाय 5 ऑफ n, राइट। सो दिस इज व्हाट जनरल फॉर्मूला। सो लेट मी राइट दिस थिंग। As a result, so let G be a group, then number of cyclic subgroup of order n in G is equal to number of elements of order n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन G। G में से आप n ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लो कितने हैं, देन यू डिवाइड दैट नंबर बाय 5 ऑफ n, वेयर व्हाट इज 5, 5 इज यूलर्स 5 फंक्शन, right? So this is what we have counting formula of number of subgroups, cyclic subgroup of order n in any group। अच्छा, अब मेरे पास मान लो कि ग्रुप का ऑर्डर है मेरे पास, लेट G बी ए ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ G इज से 35 ऑर्डर का ग्रुप है। तो इसमें मुझे 8 ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप कितने मिलेंगे, 8 ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप कितने मिलेंगे। तो देखिए 8 डज नॉट डिवाइड 35, तो उसको 8 ऑर्डर का सब ग्रुप ही नहीं मिलेगा बाय लाग्रांज थ्योरम। लेकिन हम वो थियरम नहीं यूज़ कर रहे, वी वांट टू टेस्ट दिस फॉर्मूला, हमें ये फॉर्मूला टेस्ट करनी है। तो इस फॉर्मूला से भी मुझे क्या मिलना चाहिए, आंसर इज़ 0, बिकॉज 8 ऑर्डर का तो सब ग्रुप ही नहीं मिलने वाला है इसको, तो वो साइक्लिक सब ग्रुप कैसे मिलेगा। तो इस फॉर्मूला से भी मुझे क्या मिलना चाहिए, 0, राइट। सो नंबर, लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन G, तो इसमें 8 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं। सो अगेन बाय corollary of Lagrange's theorem says that order of element divides order of group। तो इसमें 8 ऑर्डर के जितने एलिमेंट है, यदि मिल रहा है मुझे 8 ऑर्डर का एलिमेंट, तो 8 को क्या करना चाहिए, 35 को डिवाइड करना चाहिए, दैट इज नॉट ट्रू, राइट। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन G इज व्हाट, 0 डिवाइड बाय 5 ऑफ 8, वॉट एवर 5 ऑफ 8 इज वॉट एवर, बट 0 बाई दिस इज वॉट, इट इज़ 0। तो मुझे 8 ऑर्डर का कोई साइक्लिक सब ग्रुप इसमें से नहीं मिलेगा। यस, अब मुझे ये बोल दिया कि 7 ऑर्डर के कितने साइक्लिक सब ग्रुप मिलेंगे इसमें 35 में से। 35 ऑर्डर के ग्रुप में 7 ऑर्डर के कितने साइक्लिक सब ग्रुप मिलेंगे। तो देखो 35 इज व्हाट, 5 into 7, 5 into 7 and 7 divides order of G। तो then by that Cauchy's theorem or first Syllo's first theorem, I have a group, I have a subgroup of order 7 of G। 7 ऑर्डर का एक सब ग्रुप तो मिलेगा और 7 इज प्राइम, सो इट हैज़ 1 साइक्लिक सब ग्रुप। अब दूसरा सब ग्रुप चाहिए मुझे, सपोज आई वांट सेकंड, देन आई नीड another 6 elements of order 7,
और वो नहीं मिलेगा क्योंकि ये 5 इंटू 7 तो 7 ऑर्डर लार्ज P इंटू क्यू, वो हमने रिजल्ट देखा था, P इंटू क्यू, P लेस देन क्यू, P एंड क्यू आर प्राइम, देन आई हैव एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू, आई कांट हैव टू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू। सो यार 7 ऑर्डर का, लेकिन हम करने जा रहे थे ये और रिजल्ट हमने दूसरा अप्लाई कर दिया, लेकिन ओके हमारा जो प्रॉब्लम था वो हमें सॉल्यूशन वहाँ से मिल रहा है, नॉट एन इश्यू। पर मुझे सपोज 5 ऑर्डर के सब ग्रुप चाहिए। चलो 5 ऑर्डर के कितने साइक्लिक सब ग्रुप मिलेंगे, तो आप क्या करो 35 एलिमेंट्स है जी में, उसमें एक आइडेंटिटी है उसको निकाल दो, बाकी के जो एलिमेंट्स है उसमें से 5 ऑर्डर के एलिमेंट्स काउंट करो कितने हैं 5 ऑर्डर्स के, तो जितने एलिमेंट हैं डिवाइड बाई 5 ऑफ 5 दैट इज़ 4, तो जो भी नंबर मिलता है दैट इज़ व्हाट नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इन जी, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें आपको 5 ऑर्डर के सिर्फ 4 एलिमेंट ही मिले, क्योंकि 5 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, 5 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, तो 5 ऑर्डर का एक एलिमेंट तो होगा बिकॉज 5 इज प्राइम, राइट। 5 ऑर्डर का एक एलिमेंट है तो वो अकेला नहीं आता, इट कम्स विथ दिस मैनी एलिमेंट, 5 ऑफ 5 इज 4, तो 4 एलिमेंट तो पक्का है ही उसमें, राइट। अब और एक आ गया, देन अगेन यू हैव नेक्स्ट 4, सो 8 होंगे। यदि either you have 4 elements of order 5 or you have 8 elements of order 5 or you have 12 elements of order 5 and so on, तो जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसको डिवाइड बाय 5 of 5 दैट इज 4, तो दैट इज व्हाट नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन जी। तो वो हमें ग्रुप कौन सा दिया है, 35 ऑर्डर के तो आपको बहुत सारे ग्रुप मिल सकते हैं, राइट। तो आपके पास एग्जैक्टली ग्रुप कौन सा है, तो उसमें किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है वो आपको पता होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, तो जेडन में हमने वो बताया देखा था कि फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर डी, फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर डी वी हैव एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, वो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन से प्रूव किया था, राइट। We can prove that thing with this also. See, let us consider, let G be a cyclic group and order of G is equal to n and it is order of A, right. So let D is a divisor of n, let D divides n, right. तो क्या होगा, then implies number of elements of order D in G is equal to what, it is 5D, we know this result. D divides n and G is cyclic group of order n, so for every positive divisor D of n there are exactly 5D elements of order D, we know this, right. So therefore number of cyclic subgroup of order D in G is equal to what, number of elements of order D in G divided by 5 of D. अब मुझे D ऑर्डर का चाहिए, n ऑर्डर का चाहिए, then 5 of n. Now I want cyclic subgroup of order D, then 5 of D, right. So number of elements of order D in G is what, it is also 5D and here also 5D, so it is what, 1. So what we have proved, number of cyclic subgroup of order D in G is 1. G is a cyclic group of order n, then for any positive divisor D of n, I have exactly one cyclic subgroup of order D in G. So exactly 1, right. तो ये हमने इस फॉर्मूला का यूज़ करके प्रूव किया, वो हमने कुछ अलग तरीके से काउंटिंग कर रहे थे। हमने वो 6 के लिए डिस्कस किया था कि 6 ऑर्डर का मुझे साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट करना है, तो उसके लिए मुझे एक आइडेंटिटी चाहिए, 2 6 ऑर्डर के एलिमेंट, 2 3 ऑर्डर के एलिमेंट और एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट, वो ले लेते हैं। तो बाकी दूसरा ग्रुप कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेरे पास 6 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं बचते, 3 ऑर्डर के नहीं है और 2 ऑर्डर के नहीं है, सो आई कांट कंस्ट्रक्ट द नेक्स्ट 6 ऑर्डर सब ग्रुप, एंड इन दैट वे वी क्लेम दैट आई हैव ओनली वन cyclic subgroup of order 6 of cyclic group of order 12. But here we have proved in general, but with the help of this formula, right. Okay,
तो अब मेरा जो Zn है, so now we have so many information about Zn because Zn is a cyclic group of order n. तो ये जो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n के लिए हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो सब Zn के लिए यूज हो रही है अब, राइट. तो Zn इज व्हाट, इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n. So for every positive divisor d of n we have exactly one subgroup of Zn. तो Zn को भी मुझे कितने सब ग्रुप मिलेंगे, एक ही सब ग्रुप मिलेगा फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर, राइट. तो देखिए और एक चीज सी, सपोज G is what, G is generated by A, order of G is n is equal to order of A. साइक्लिक ग्रुप लिया n ऑर्डर का. तो यहां से क्या मिल रहा है मुझे, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n. देन फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर d ऑफ n देर इज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर d. मतलब जितने डिवाइजर है corresponding to every divisor I have exactly one subgroup. तो now my question is what, ये जो G मेरा n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो उसको टोटल कितने सबग्रुप्स मिलेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ G and G is cyclic group of order n, so is equal to total number of divisors of n. n के जितने डिवाइजर उतने सब ग्रुप, corresponding to every divisor I have exactly one subgroup. So total number of divisor of n is what, it is tau n and we know this function, right. तो अब मुझे बोल दिया कि suppose I have Z100 is what, it is a cyclic group of order n. तो इसके सब ग्रुप कितने हैं. So number of subgroups of Z100 is equal to what, it is tau 100, and tau 100 is what, tau 100 is 2 square into 5 square. तो ये कितना रहेगा, 3 into 3 that is 9. तो tau 100 सॉरी Z100 के सब ग्रुप्स कितने हैं, 9 सब ग्रुप्स मिलेंगे, राइट. जितने डिवाइजर उतने सब ग्रुप. But that is true only for the cyclic group, right. Cyclic group nahi hai, then we can't say it is, right. So let us summarize all this discussion in terms of some result. तो ये जो हमने corresponding exactly one subgroup मिल रहा है for cyclic group, और दूसरा भी जानते हैं कि about the order subgroup of a cyclic group is cyclic group. For every positive divisor d of n there are exactly 5d elements of order d in a cyclic group of order n. तो ये जो सब चीज़ है that is what fundamental things about the cyclic group. So let us quote that all these things in terms of a theorem and we call it fundamental theorem of cyclic group. Okay, तो उससे पहले ये एक result, right. Then we write फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप. तो देखिए ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप में हम 3-4 रिजल्ट लिखेंगे. वो उसमें से 2-3 रिजल्ट हमारे अगले जो आगे हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट, वो भी आ जाएंगे. सो इट इज़ जस्ट रिपीटेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इज़ अ रिविजिट ऑफ साइक्लिक ग्रुप. सो नाउ लेट अस राइट वन थ्योरम. Whatever we write here, we had already proved it, right? So we just summarize it. Fundamental theorem of cyclic group. So first thing, every subgroup of a cyclic group is every subgroup of a cyclic group is cyclic. Second one, number of generators of a cyclic group
cyclic group of order n is phi of n. Third thing, number of generators इतने मिलेंगे, then number of now we discuss about the order of the elements. So for that, let me consider in this way. Let G is generated by A and order of G is equal to n. Then for every positive divisor d of n, there are exactly phi d elements of order d. Fourth thing, let G is equal to this and order of G is equal to n, then phi d elements of order d. So again for every let us add it here itself. Let's write in this way. Then for every positive divisor d of n, there are exactly phi d elements of order d and exactly one subgroup of order d. डी ऑर्डर के phi d एलिमेंट्स है और डी ऑर्डर का सब ग्रुप तो एक ही है. सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी. ओके, लेट मी उसको अलग ही लिखते हैं, इसको अलग ही लिख देते हैं. चलो, let G is equal to this one and order of G is equal to n. Then for every positive divisor d of n, there is exactly one subgroup of order d. Then there is exactly one subgroup of order than G has. For every positive divisor d of n, G has exactly one subgroup of order d. and वो कौन सा है? That's why we are writing independently, namely that is a subgroup generated by a to the power n by d. इससे जो जनरेट होगा that will be the subgroup of order d and it will be the only subgroup. So this is what fundamental theorem of cyclic group. Or let me add one more thing. Number of, let G be a subgroup generated by A and order of G is equal to n, then number of subgroups of G is equal to tau of n. So this is what some basic information about cyclic group of order n. So we say it is fundamental theorem of cyclic group. तो ये कोई भी मेरे पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आ गया है, देन इमीडिएटली ये जो रिजल्ट्स है वो क्लिक होने चाहिए, राइट? तो ये जो है, ये जो रिजल्ट्स
ये आप Zn पर भी अप्लाई कर सकते हैं. So for Zn, Zn is what? Our cyclic group of order n. So every subgroup of a cyclic group is cyclic. So every subgroup of Zn is cyclic. Now number of generators of a cyclic group of order n is phi n. तो इसके लिए तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट को स्किप करो. सेकंड के लिए नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Zn इज इक्वल टू व्हाट? फाई ऑफ n. Zn के जनरेटर्स कितने मिलेंगे? फाई n, क्योंकि Zn इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n. नाउ सपोज ये थर्ड वाला कैसा रहेगा कि नाउ G इज Zn, राइट? नाउ G इज Zn, देन फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर n, फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर n of positive divisor d of n, there are exactly phi d elements of order d. G has, यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ G has. So here for n, Zn has exactly phi d elements of order d, right? Fourth thing, G is equal to Zn, then for every positive divisor d of n, G has exactly one subgroup of order d. So for every positive divisor d of n, Zn has exactly one subgroup of order d, and namely it is generated by n by, see Zn is what? See Zn is generated by 1. So it is namely 1 raised to what? Here if G is generated by A, then that subgroup of order d is generated by a to the power n by d, but now here my a is 1, so it is namely 1 raised to n by d, means what? 1 1 1 1, how many times? N by d times, so it is just n by d, so it is generated by n by d only. I hope this is clear. See suppose for example n by d is equal to say 4, ये मुझे मिल गया, n by d is say 4, so 1 raised to n by d is what? It is 1 raised to 4, so 1 raised to 4 is what? 1 plus 1 plus 1 plus 1, it is what? It is 4, so it is just what? It is n by d, right? So in the case of Zn it becomes this one. Now this one is fourth. Now fifth one is number of subgroups of Zn is equal to tau of n. आपको Zn के कितने सबग्रुप्स मिलेंगे? tau of n जितने, राइट? सो let us discuss one example and then we stop our lecture. So you just discuss discuss Z30 with respect to number of with respect to order of elements and number of subgroup. Order of elements and number of subgroups.
मतलब हमें Z30 को डिस्कस करना है इन एनी वे, कि मतलब Z30 मुझे दे दिया है तो मुझे Z30 के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट थिंग, Z30 इज व्हाट, ये कैसा दिखेगा, 0 1 2 अप टू 29 ऐसा दिखेगा। इट इज जनरेटेड बाय व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेगा। नाउ नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Z30 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 530। इसके जनरेटर्स कितने रहेंगे, 530। 5 ऑफ 30 इज व्हाट, 5 ऑफ 30 is 5 of 3 into 2 into 3 into 5, right? So it will be 5 2, that is 1, 5 3 it is 2, and 5 5 is 4. So it has 8 generators. तो उसके 8 generators हैं। कौन कौन से हैं? So Z30 is generated by 1. Then you consider those integer from 1 to 29 which are relatively prime to 1. So relatively prime to 30. So 2 is not there, 3 is not there, 4 is not there, 5 is not there, 6 is not there. तो इवन तो कोई नहीं आएगा। अब देखना है ऑड में से, क्योंकि इवन में 2 है और 30 में भी 2 is a divisor of 30. So 3 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, yes 7 is there. Then 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12 नहीं, 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 3 के मल्टीपल भी नहीं है क्योंकि 3 के मल्टीपल में 3 is a divisor and 30 has divisor 3. 5 भी नहीं है क्योंकि 5 is a divisor of 3. Okay, now 13, 14, 15, 16, next is 17, 18, 19, 19 yes, 20 is not there, 21 नहीं, 23, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, and 29. So it is 29. So 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मुझे जनरेटर्स मिल गए। ओके, नाउ 30 के डिवाइजर्स और उसके क्या लिखेंगे, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो डिवाइजर्स ऑफ 30 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, order of element and number of element. So divisors of 30 are 1, then 2, 3, 5, 6, 10, then 15 and 30. इतने ही डिवाइजर है क्योंकि 30 is what, 30 is 2 into 3 into 5, 1 1 1, 2 2 2, 8. So 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिवाइजर्स मिलेंगे। अब 1 ऑर्डर के एलिमेंट 5 of 1, that is 1, 2 ऑर्डर के 1, 5 of 3 is 2, 5 of 5 is 4, 5 of 6 is 2, 5 of 10 is 4, 5 of 15 is 3 into 5, 2 into 4, 8, 5 of 30 is 530 is 8. Now you just total, it is 16, 16, it is 10 and this is 4. So 16 plus 4 is 20, 20 plus 10 is 30. तो ये हमें पूरा 30 एलिमेंट्स का हिसाब मिल गया कि 1 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5, 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6, 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 and 8 elements of order 15 and 8 orders of element 30. Now subgroups.
order of subgroup. Okay, first of all, number of subgroup. Number of subgroups of order, number of subgroups of Z30 is equal to tau 30, and tau 30 is what? 1 plus 1 2, similarly here 2 and 2, 2 into 2 into 2, so it is 8. मुझे 8 सबग्रुप्स मिलेंगे 30 Z30 के. तो यहाँ पर लेट अस लिस्ट ऑर्डर ऑफ सबग्रुप, ऑर्डर ऑफ सबग्रुप और सबग्रुप, वो कौन सा सब मतलब कौन सा है. तो फॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30. तो मतलब 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का. सो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप 1 ऑर्डर का कैसे मिलेगा? सो यू कंसिडर जस्ट 30/1. 30/1 से जो जनरेट होगा वो 30/1. सो 30/1 इज व्हाट? 30, एंड 30 in Z30 is 0. So it is what? It is generated by 0. Now this will be subgroup, it is 30/2, and that is what? Generated by 15. This is 30/3 and it is generated by 10. It is 30/5 से जो जनरेट होगा, and 30/5 is what? 6. It is 30/6. So it will be generated by 5. 30/10. So it is what? 3. 3 से जो जनरेट होगा वो. This will be 30/15. That is what? It is 2. 2 से जो जनरेट होगा वो. And this is what? 30/30. 30/30 is what? 1. So जो 1 से जनरेट होगा वो. तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, 1 ऑर्डर का ये सब ग्रुप है, 2 ऑर्डर का ये सब ग्रुप है, मतलब इससे जो जनरेट होगा वो 3 ऑर्डर का 10 से जनरेट होगा, 5 ऑर्डर का 6 से जनरेट होगा, लाइक दैट, राइट. और कितने हैं? नंबर ऑफ सब ग्रुप. सो लेट अस मेक द नेक्स्ट कॉलम, नंबर ऑफ सब ग्रुप. वन ऑर्डर का एक, 2 ऑर्डर का एक, 3 ऑर्डर का एक, 5 ऑर्डर का एक, 6 ऑर्डर का एक, 10 ऑर्डर का भी एक ही मिलेगा, 15 ऑर्डर का भी एक, और 30 ऑर्डर का भी एक. सो फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर D ऑफ 30 देयर इज एग्जैक्टली 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D. सो ये हमारे पास क्या हुआ? Z30 की पूरी कुंडली निकल गई कि Z30 है मेरा, तो उसमें ये है 30 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसके जनरेटर्स कितने हैं? 8. वो किस कौन कौन से एलिमेंट से जनरेट हो रहा है? ये 8 के 8 एलिमेंट आ गए जिससे वो जनरेट हो रहा है. कौन से एलिमेंट है? दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 29 विच आर को प्राइम टू 30. और किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है? फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर D ऑफ 30 देर आर एग्जैक्टली 5D एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D, एंड उसको कितने सब ग्रुप मिलेंगे? टाउ ऑफ 30 दैट इज 8. कौन कौन से हैं? सो दे आर जनरेटेड बाई this integers, and its order are these are orders, and we know how to find it. And corresponding to every positive divisor D of 30 there is exactly 1 subgroup of order D. तो ये जो 5 से जनरेट होगा तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 6. तो 6 ऑर्डर का एक सब ग्रुप है, वो यही है, इसके सिवा कोई और दूसरा नहीं है. सो दिस इज व्हाट अबाउट Z30. सो इन होमवर्क यू मे कंसिडर Z40. तो ये सब पूरा एनालिसिस आप करो Z40 के लिए, और आपको कोई भी इंटीजर ले लो, Z60, Z75, Z100, वॉट एवर यू लाइक. बट वंस यू हैव Zn देन यू शुड हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन योर टंग, राइट. सो व्हाई वी डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल फॉर Z30 और इन जनरल Zn? वाई? क्योंकि आगे जाके हम प्रूव करेंगे कि मुझे कोई भी साइक्लिक ग्रुप दिया है, इफ़ आई हैव गिवन एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, मान लो कि 30 ऑर्डर का मुझे बोल दिया कि 30 ऑर्डर का मुझे कोई साइक्लिक ग्रुप दिया है, देन दैट साइक्लिक ग्रुप इज
ओनली एंड इट मस्ट बी Z30, वो Z30 ही है, वो Z30 के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। उसको बोलते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म, वो आगे जाके पढ़ेंगे। दैट्स वाई वी डील विथ दिस विथ Z30 इन दिस डिटेल, कि आपको कोई भी साइक्लिक ग्रुप दे देंगे n ऑर्डर का, देन इट मस्ट बी Zn। तो मतलब साइक्लिक ग्रुप को हैंडल करना है, देन यू शुड नो हाउ टू हैंडल Zn। और Zn की ये इसमें सब इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, आपको कोई फाइनाइट ग्रुप दे देंगे। सपोज यू हैव गिवन G इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 एंड सपोज इट इज अबेलियन, तो अगेन that group we will decompose that group is a product of Zn। वो Zn के कुछ प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, वो आगे जाके देखेंगे। तो उसकी हेल्प से हम ये जो 45 ऑर्डर का ग्रुप है, दैट इज व्हाट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ सम Zn। तो अगेन टू हैंडल द अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 वी शुड हैव अ गुड कमांड ऑन Zn। सो दैट्स वाई Zn इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो सिंपल ऑल्सो। its structure is very simple and it is clear, right? So once again फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये Zn के बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने वो लिखा था फंडामेंटल थियरम फॉर साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। तो वो जो थियरम था ना, वो एक्चुअली Zn के लिए ही था, लेकिन हमने वहाँ Zn नहीं लिखा था, G इज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n लिखा था। फिर हमने पैरेलल Zn के लिए लिखा। And now further on, whenever we have cyclic group of order n, we deal with Zn। but पहले हम उसको आइसोमॉर्फाइज करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद ये सब यूज़ करेंगे हम। और उससे पहले भी हम इसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो यूज़ आ ही जाएगा। सो इन शॉर्ट, Zn इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप टू हैंडल फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। these are basis। Zn is what? Zn is a basis for the finite abelian group in some sense. Basis, it is not like a basis of a linear algebra, right? But it is in some sense Zn's are basis. Okay, so we stop this lecture here, and in next lecture we will continue something new. Thank you.